Hello all. In this lecture we are going to learn about fundamental integrity rules, diagram to relational mapping and normalization of the relational database. So let's start the very first topic, which is fundamental integrity rules. Before starting with fundamental integrity rules, let me show you from where you can get the content of these particular image in MS Access. So just first of all click on MS Access, open any particular table. Like this, here I have opened employee table. Now click on the database tools, okay, and then click on relationship. Once you click on relationship, as you can see I have only one table, so I will add this table twice. In case you have another table, you can click on that particular table. Okay, now you can see in my this table there is no primary key. So for creating a primary key, what you have to do is you have to click on this, go to the design view and give employee code the primary key. Right, now come back to the database relationship, close, and again we are going to click on and add the table. We are going to edit relationship. Now when you are going to click on edit relationship, see here you are getting 3 points: enforce referential integrity, cascade update related fields, and cascade delete related records. Okay, so we are going to understand what does these 3 points basically means. So there is in fundamental rules, fundamental integrity rules, the very first rule of integrity is integrity rule number 1, which is known as entity integrity. Now what is this rule is all about? ये रूल आपको ये बताता है that every table must have a primary key and जो भी उसका कॉलम हेडिंग है, which is also known as attribute, जिसको आपने प्राइमरी की सेलेक्ट किया है, that has to be unique and not null. Okay, so as you can see in this particular table, there is an employee code key is my primary key, which is unique and not null. Every employee here is having an employee code which is not null. Null means it is not empty and it is not duplicate. It is only unique. Means if A is having employee code S001, वो कोड इनमें से किसी भी दूसरे एम्प्लॉई के पास नहीं है. ओके, सो द वेरी फर्स्ट रूल इज एंटिटी इंटीग्रिटी, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि हर टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए और जिसको आपने प्राइमरी की चूज़ किया है वो यूनिक और नल होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन इज बिसाइड्स दिस, अगर इस केस में किसी में मान लीजिए आपकी यहाँ पे 04 है और यहाँ पे भी 04 है, तो ये आप प्राइमरी की नहीं ले सकते और जैसे ही आपका ये सेम हो जाएगा वो आपको बोलेगा कि नहीं, ये दिस डेटा कैन नॉट बी यूज्ड एज प्राइमरी की. और अगर मान लीजिए आप डी कॉलम में यहाँ पे कोई वैल्यू नल है तो आप भी इसको अपने कॉलम को प्राइमरी की यूज़ नहीं कर सकते. तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय कोड है दैट इज़ एन एट्रीब्यूट, तो यू कैन से कि एट्रीब्यूट चूजन should be a primary key and it should be unique and not null. Okay, इसकी वजह से आपका कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगा. Now come to the next, which is referential integrity. Now referential integrity I'll show you from here. हमने टेबल पहले ही ऐड कर ली है और now you can see कि यहाँ पे आपका प्राइमरी की के लिए आइकन शो हो रहा है. Okay, so what do you mean by primary referential integrity? This one is your integrity rule number 2. See, integrity rule number 2, referential integrity. Okay, this one is your referential.
अब इस केस में आपको क्या करना है, आपने देखिए यहाँ पे आपने एम्प्लॉय कोड जैसे ही लिखा यहाँ पे और यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, दोनों टेबल मैं अगेन आपको इसलिए बता रही हूँ दोनों टेबल सेम है बिकॉज हमारे पास एक ही टेबल थी। अगर आपके पास दो डिफरेंट टेबल हैं तो आप ले लीजिए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये बताता है जो भी आपने रिलेशन बनाया है दोनों टेबल्स में वो कांस्टेंट रहेगा। मीन्स अगर 1 to 1 है तो वो सेम रहेगा, 1 to many है तो वो many रहेगा, many to many है तो वो उसी के अकॉर्डिंगली आपका कंटेंट रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रिवेंट करता है, मान लीजिए ये आपकी मेन टेबल है, इस टेबल में आपकी प्राइमरी की है और इस टेबल में आपकी कोई भी प्राइमरी की नहीं है, या ये आपका फॉरेन टेबल है, फॉरेन टेबल है, दिस वन इज़ योर फॉरेन की। तो इस पर्टिकुलर टेबल में आप कोई भी चीज़ ऐड और डिलीट नहीं कर सकते हैं अगर आपने इनका रिलेशनशिप क्रिएट किया है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने किया एडिट रिलेशनशिप, पहले हमने टेबल सेलेक्ट की और यहाँ से आपने क्या है, पहला एम्प्लॉय रखा, देन एम्प्लॉय, देन कॉलम, एम्प्लॉय कोड को आपने रिलेट किया है डिपार्टमेंट से। ओके राइट, देन यू क्लिक ओके एंड क्रिएट। अब जब आपने क्रिएट किया तो आपने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे क्लिक नहीं किया। व्हाट डज इट मीन कि आप इस टेबल में कोई भी कंटेंट अगर ऐड करेंगे तो उसके चांसेस हैं कि आप उसका ऐड और डिलीट कर सकते हैं दूसरी टेबल में। बट जैसे ही आपने यहाँ पे एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्लिक किया, सी यहाँ पे क्या है, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, कास्केड डिलीट टू रिलेटेड रिकॉर्ड्स, और हमारा रिलेशन टाइप क्या बना है, 1 to many। अब इसके साथ जैसे हमने ये दो चेक कर दिया, ओके so in this case when you create the relationship, you cannot edit the foreign key table without including the relation of the now just close and save। so what does it mean, it means कि जब भी आपको अपना टेबल्स में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो फॉरेन की टेबल में आपको उसमें चेंजेस करने होंगे प्राइमरी की टेबल में, तभी आप फॉरेन टेबल में अपने चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने कोई फॉरेन टेबल में कंटेंट या किसी एम्प्लॉय कोड का डेटा ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आपको एम्प्लॉय नंबर 7 का डेटा ऐड करना है, तो पहले एम्प्लॉय कोड नंबर का जो भी डेटा है वो आपको प्राइमरी की टेबल में ऐड करना होगा। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, ER डायग्राम टू रिलेशनल मैपिंग। आपने लास्ट जो ये हमने ER डिज़ाइनिंग किया था लेक्चर, उसमें आपको मैंने बताया था एंटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनशिप को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सी ये आपकी एंटिटी है, डबल से जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ योर वीक एंटिटी, दिस वन इज़ योर रिलेशनशिप, दिस वन इज़ योर रिलेशनशिप ऑफ वीक एंटिटी विद स्ट्रॉन्ग एंटिटी। देन ये आपके ओवल शेप में है, ओवल शेप में आप करते हैं। देन की एट्रीब्यूट है जो वो आप ओवल शेप विद अंडरलाइन करते हैं। सो दिस वन इज़ ऑल अबाउट दी ER मैपिंग। तो ये आपके फंक्शंस है, इनके थ्रू ही आप ER डायग्राम को रिलेशनल डेटाबेस में चेंज करते हैं। तो इसको आप नेम देते हैं ER डायग्राम टू रिलेशनल मैपिंग। सो जो हमने अभी पढ़ा रिलेशन क्रिएट करना एंड फर्स्ट 2 स्टेप्स, उसके बाद आपका ER डायग्राम टू रिलेशनल मैपिंग आता है। और जब ये आपका ER डायग्राम टू रिलेशनल मैपिंग हो जाता है देन द रूल्स कम ऑफ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनल डेटा बेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनल डेटा बेस? Normalization of relational database basically a process of organizing the data very efficiently to remove or control the data redundancy। अब data redundancy क्या होता है? Data redundancy is basically the duplication of data। कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का डेटा
अगर ट्वाइस रिकॉर्ड हुआ है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, कोई कॉलम अगर ट्वाइस है तो वो रिमूव होगा। तो वो सारे जो चेकिंग वर्क है दैट टेक प्लेस इन द नॉर्मलाइजेशन। तो बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस to structure the data in a manner which remove or control data redundancy। okay, इसमें आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू ये वर्क करता है। फर्स्ट वन इज़ योर रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना अमंग द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टेबल। ओके, कोई भी टेबल है उसमें जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनके रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना। उन रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको रिलेशन में कन्वर्ट करना। रिलेशंस इन नॉर्मलाइजेशन यू कैन से दी नोन एज टेबल्स। देन कंबाइन करना उन सारे रिलेशंस को, इट मीन्स कंबाइन करना उन सारे टेबल्स को टू फॉर्म अ डेटाबेस। ओके, सो दीज आर दी रूल्स विच यू फॉलो टू normalization of a particular relational database. Now what are the basic objectives of the normalization? So there is two basic objective of the data normalization. First one is your controlling redundant data, यानी कि जो डेटा आपके यूज़ का नहीं है एंड जो डुप्लीकेट डेटा है उनका कंट्रोलिंग करना, और जो भी आपकी डेटा डिपेंडेंसी है ओके सिर्फ उन्हीं डेटा को लेना। रिलेटेड डेटा इज़ ओनली स्टोर्ड इन टू दी टेबल। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है एक टेबल है आपकी, उसमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का हाइट, वेट, एज सारी डिटेल्स हैं एंड देयर इज़ वन कॉलम ऑल्सो इन विच द एरिया टेम्परेचर इज़ मैंशनड। ओके, तो एरिया का जो टेम्परेचर है अगर उसका लिंक नहीं है एज, हाइट और वेट से तो वो आपके लिए जो डेटा है दैट इज़ रिडेंडेंट, तो आप उसको वहाँ से रिमूव करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ योर हाउ यू कैटेगराइज और व्हाट आर द बेसिक फॉर्म्स ऑफ द normalization. There are more than 3 forms of the normalization, but here we are going to discuss only first 3 forms of the normalization. फर्स्ट 3 फॉर्म्स जो है हमारी आप नॉर्मलाइजेशन की दैट इज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड दी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके, दिस वन इज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड दी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब जब आता है आपका इसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है क्या चीज़? सबसे पहला तो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन का वो फॉर्म है जिसमें पहला सारे की एट्रीब्यूट्स डिफाइंड होंगे। सारे की एट्रीब्यूट्स डिफाइंड होने का क्या मीनिंग है? जैसे हमारी ये एम्प्लॉय टेबल है तो हमारी ये की एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, देन डिपार्टमेंट, बेसिक पे, स्पेशल अलाउंस, ये सब डिफाइंड है। ओके, सो दिस वन इज़ योर फर्स्ट feature of your first normal form. Next, attributes values are atomic. Attributes values are atomic का क्या मीनिंग है? See, ये जो है सेल्स अब फर्दर किसी और कैटेगराइज में नहीं हो सकती, वो लास्ट है। अगर सेल के फर्दर डिपार्टमेंट है तो वो एटॉमिक नहीं कहलाएंगे और उसको हम किसी और कैटेगरी में ब्रेक करेंगे। ओके, तो जो भी है वो फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए कंटेंट। अगर वो फर्दर डिसइंटीग्रेट हो सकता है तो आप उसके लिए एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम, ABC, इन सब में फर्स्ट नेम है। ओके, अगर एम्प्लॉय का सेकंड नेम या लास्ट नेम भी होता तो वो दोबारा से एटॉमिक फॉर्म में नहीं है तो डिसइंटीग्रेट हो सकता है फर्दर। तो आप उसके लिए 2 कॉलम और जनरेट करेंगे, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय मिडल नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम। ओके, सो दिस वन इज़ योर सेकेंड फीचर which is attributes values are atomic. Next, table is free from any repetitive group. What do you mean by any repetitive group? See, employee name दोबारा नहीं आना चाहिए, basic पे भी दोबारा नहीं आनी चाहिए, means these particular columns should not repeat themselves. Then identify each row with primary key. Identify each row with primary key का meaning है जो आपकी primary key है सिंगल रो में। फॉर एग्जाम्पल इन दिस रो द प्राइमरी की इज S001, इन दिस रो द प्राइमरी की इज S002। तो हर रो की एक प्राइमरी की होनी चाहिए। ओके, सो इन केस these all conditions satisfied, that is known as first normal form of a particular normalization. Okay, now come to the second normal form. Second normal form में क्या होता है?
सारे के सारे जो फीचर्स आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के हैं वो सारे फॉल करेंगे. एंड बिसाइड्स दैट there is one more condition. It contains composite key and all non-key contributes are dependent complete set of the composite or not any part of it. Okay, now वो इसका मीनिंग क्या हुआ. सी मान लीजिए आपके पास 3 टेबल हैं. ओके, एक टेबल में है आपकी सेल्स और एक टेबल में है आपकी सेल्स का अमाउंट. ओके, तो जो सेल से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सारी आपकी एक टेबल में आएगी और एक टेबल है आपकी जिसमें सारी आपकी अमाउंट की डिटेल सारी आ जाएंगी. ठीक है, तो सेल्स से आपका कितना अमाउंट आया आपके पास, 2 टेबल हैं. ओके, तो अब इसमें हमने क्या किया, एक और टेबल क्रिएट की जिसमें सेल्स टेबल की प्राइमरी की आ गई, अमाउंट टेबल की भी एक प्राइमरी की आ गई, और जिस दिन आपने सेल्स किया या परचेज किया तो उस दिन की एक डिटेल आ गई. तो कहने का मीनिंग बेसिकली ये है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आपके पास 2 सेपरेट टेबल हैं, फिर आप एक और टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें दोनों टेबल्स की प्राइमरी की आएंगी एंड ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ द कंपोजिट नॉट एनी पार्ट ऑफ इट. इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो भी आपकी दोनों कंपोजिट की का मीनिंग पहले भी डिस्कस किया था, जो भी आपकी प्राइमरी की होती है उनको आप जब कंबाइन कर देते हैं वो आपकी कंपोजिट की कहलाती हैं. तो जो रेस्ट ऑफ दी हैं कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टेबल वो दोनों आपके कंपोजिट की पे डिपेंडेंट होंगे. मींस उनसे आप सेल्स से भी डिटेल्स निकाल सकते हैं और आपकी प्रोडक्ट की डिटेल भी निकाल सकते हैं. तो ऐसे कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला टोटल अमाउंट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, तो उसके लिए आपको सेल आईडी यानी सेल प्राइमरी की भी चाहिए एंड अमाउंट की भी प्राइमरी की चाहिए, अमाउंट टेबल की. तो इन दोनों टेबल की जब आपकी प्राइमरी की है तो बाकी ऐसे कंटेंट जो इन दोनों की पे डिपेंडेंट हैं और वो उस टेबल के विद इन है तो वो आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहलाता है. फॉर दिस आई एम गोइंग टू यूज द गूगल to help you in better understanding of this. See, second normalization form in DBMS. Examples. Images. Okay, now see दिस वन पर्टिकुलर इमेज. अब यहाँ पे देखिए आपकी ये क्लाइंट टेबल है और ये रेंटल टेबल है. ओके, एंड दिस वन इज़ योर प्रॉपर्टी टेबल. तो क्लाइंट टेबल प्राइमरी की है इस वाली टेबल में और इस टेबल में आपकी प्रॉपर्टी नंबर प्राइमरी की है. तो जो हमने आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म जनरेट की है टेबल, उसमें आपकी क्लाइंट नंबर की भी है, प्रॉपर्टी नंबर की भी है. ओके, एंड देन आपका जो है कॉमन कंटेंट है जो दोनों पे डिपेंड करता है, दैट इज रेंट. रेंट आपका प्रॉपर्टी और एड्रेस दोनों पे डिपेंड करता है. देन ओनर नंबर भी आपका प्रॉपर्टी और एड्रेस पे डिपेंड करता है. उस या फिर अदर नेम, वो आपका ओनर नेम वो डिपेंड करता है, या फिर कस्टमर नेम वो डिपेंड, क्लाइंट नेम वो डिपेंड करता है. तो वो हम चेक करके इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे या फिर हमारी जो डिटेल्स हैं. तो इस केस में आप देखिए रेंट स्टार्ट और रेंट फिनिश, आपका कब से रेंट स्टार्ट हो रहा है, कब से रेंट फिनिश हो रहा है, इसमें सिर्फ हमने प्रॉपर्टी की डिटेल और आपकी क्लाइंट की नंबर की डिटेल डाली. तो ये दोनों जो कंपोनेंट हैं रेंट स्टार्ट एंड रेंट फिनिश, वो सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ क्लाइंट नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है. ये 2 फैक्टर हमारे कंपोजिट की पे डिपेंडेंट है. मींस क्लाइंट नंबर एंड प्रॉपर्टी नंबर दोनों पे एक साथ डिपेंडेंट है. ओके, सो दिस वन इज अबाउट द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. इट कंटेन्स कंपोजिट की. इट मीन्स जो जितनी भी आपके पास टेबल है सबकी प्राइमरी की एंड ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स. व्हाट डज इट मीन? रेंट स्टार्ट एंड रेंट फिनिश आर नॉन की एट्रीब्यूट्स. दे आर dependent on complete set of composite. Complete set of composite means
क्लाइंट नंबर एंड प्रॉपर्टी नंबर दोनों पे, एंड नॉट एनी पार्ट ऑफ इट। मीन्स आप ये नहीं कह सकते वो सिंगली सिर्फ रेंट स्टार्ट और रेंट फिनिश सिर्फ क्लाइंट नंबर पे डिपेंड करता है। ओके, सो दिस वन इज योर सेकेंड फॉर्म। नाउ कम टू दी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, आपका फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म के सारे फीचर्स हैं। व्हाट डज इट मीन कि ये सारे फीचर्स फुलफिल होने चाहिए, सेकंड फॉर्म के ये भी फीचर्स फुलफिल होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट। इसमें है आपका कि आपके जो भी नॉन की एट्रीब्यूट है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे की एट्रीब्यूट में। पहले में था हमारा कंपोजिट की, और इस केस में है हमारे इस केस में हमारा होगा कि आपके पास कोई टेबल है जिसमें आपके पास सारी की सारी चीज़ें मेंशन्ड है। ओके, और उसमें सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स आपके पास डिपेंडेंट है। सो लेट्स सी, अगर ये अब इस एग्जाम्पल के थ्रू आई एम टेलिंग यू दी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये सेम एग्जाम्पल है जो आपने सेकेंड में किया था, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। अब इस केस में देखिए आपके पास जो टेबल है दैट इज क्लाइंट टेबल, रेंटल टेबल, प्रॉपर्टी फॉर रेंट एंड ओनर टेबल। तो इस केस में है आपने जो टेबल जनरेट की थी रेंटल, दैट वन इज ऑफ सेकेंड फॉर्म, ये प्रॉपर्टी एंड ये थर्ड। अब आपने क्या किया, क्लाइंट की जो इनकी सारी डिटेल्स हैं उनको सेग्रीगेट कर दिया। ओके, क्लाइंट से रिलेटेड सारी डिटेल एक साथ है, रेंटल की डिटेल जो थी वो एक साथ है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट एक साथ है। यहाँ पे हमारा ओनर नेम भी था तो ओनर नेम को हमने अलग कर दिया। ओके, सो इन दिस केस आपकी सारी टेबल देखिए 1NF का फीचर भी है। अब इसमें ये आपने जो डिवाइड किया है दिस वन को, ये आपका फोर्थ की रूल बताता है। इस केस में है कि आपके पास जो भी टेबल थी उनको आपने डिसइंटीग्रेट कर दिया और सेपरेट बना दिया। ओके, और उस केस में आपके इस वाले टेबल के नॉन की एट्रीब्यूट वो सोलली आपके की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है। ये सारे आपके नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है। नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है। ओके, सो दिस वन इज द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट। तो थर्ड फॉर्म में आप बेसिकली क्या करते हैं, इन थर्ड फॉर्म आपके पास जितने भी टेबल हैं उनको आप डिसइंटीग्रेट करके उसमें जो अनरिलेटेड फील्ड्स हैं उनको आप दूसरी फील्ड में दूसरी टेबल में क्रिएट करते हैं। ओके, जो उससे रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल इन दिस आपकी यहाँ पे जब ओनर नेम था तो इन्होंने ओनर नेम को यहाँ से हटा दिया, ओनर नेम अलग कर दिया, प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी एड्रेस, रेंट ये ओनर नेम से रिलेटेड कर दिया, ओनर नंबर से सॉरी। अब यहाँ पे ओनर नंबर का ओनर नेम से रिलेशन नहीं था, उसको अलग करने की अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आपने इसको वहाँ से रिमूव करके एक और टेबल क्रिएट कर दी। ओके, सो दिस one is the example of third normal form. That's all for today. Take care.